Good morning, students. Today I will talk to you about viruses. Today I will discuss about the structure of viruses, morphology of viruses, size of viruses, and classification of viruses, replication of viruses, etc. So now let you to study about detail. So study of virus known as the virology. Virus ଭିତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ virology କହନ୍ତି, and it is the branch of microbiology. Okay. Do you know about that? Viruses are the smallest obligate intracellular infectious agent. They always depend upon the host cells for survive. Within the host cell, they will be multiply, replicate, okay, and spreaded. And in the host cell also create a disease, okay. And they have the viruses not have the cellular organizations. They do not contain the organelles, and viruses contains the genome known as the nucleic acid. That nucleic acid known as also genome, and it is contain either DNA deoxyribonucleic acid or RNA ribonucleic acid. तो भाइरस गुड़ाक होती ना सब छोटिया ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट अटंती कहीं से माने होस्ट सेल उपर डिपेंड करती होस्ट सेल मध्य वंश विस्तार करती मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करथांती एवं डिजीज क्रिएट करथांती सेमानकर कौन से ऑर्गेनेल्स न थाए एवं भाइरस सेंटर भाइरस सेल सेंटर न्यूक्लिक एसिड थाए ताकू जेनम कही था जेनम भितर डीएनए थाए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड थाए किंबा राइबोन्यूक्लिक एसिड थाए बा आरएनए थाए ओके एवं देख स्ट्रक्चर देखिबा भाइरस स्ट्रक्चर देख न्यूक्लिक एसिड को आम जेनम कहले एवं ए न्यूक्लिक एसिड जेनम इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन शीथ that is known as the capsid, okay, and that capsid will be surrounded by the protein and lipid material that is known as envelope. ताले न्यूक्लिक एसिड को जे कवर करके कैप्सिड कही था कैप्सिड रे प्रोटीन शीथ रही प्रोटीन रही एवं कैप्सिड को जे सराउंड करी ताको एनवेलप कही था से प्रोटीन आ लिपिड रही ओके तो टोटल भाइरस पार्टिकल्स और एंटायर इन्फेक्टियस यूनिट को आम कहले जे विरियन. So what is virion? The virion contains total infectious units of viruses or the virus particles. तो total virus particles बा infectious unit को हमें virion बोली कही था okay. Then come to the differences between the viruses bacteria. Virus bacteria में difference किसी रही देखो virus गुड़ाक bacteria ठुर बहुत smaller अटंती and viruses contain only one type of nucleic acid. That nucleic acid that is either DNA or RNA either deoxyribonucleic acid थाए किंबा राइबोन्यूक्लिक एसिड थाए एवं भाइरस मध्य कौन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन न थाए से ऑर्गेनेल्स किसी न थाए बा राइबोसोम न थांती एवं एथरे एंजाइम बहुत लैक अटंती जो एंजाइम गुड़ाक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड तैयारी करिवे सहायक होइथांती से एंजाइम गुड़ाक बहुत एथरे लैक परिमाण रही थांती ओके. Already I had said that viruses are the obligate intracellular parasite because they depend on the host cells for their survive and they cannot affected by the antibiotic. तांको जेते antibiotic देले भी तांको किछ affect होई न थाए okay. And these the viruses are the filterable through the bacteriological filters. Bacteriological filters माध्यम भाइरस गुडा को filterable होई थांती. Then come to the morphology of viruses. In the morphology virus first see that size virus गुडा को बहुत smaller size अटंती सेमानकर लेंथ साधारणतः 20 to 300 nanometer होई थाए एवं these are the seen under by the light microscope known as the ultramicroscopic or the electron microscope. सेमान को साधारणतः electron microscope द्वारा देखि थाउ किंबा light microscope किंबा ताको कहंती ultramicroscopy द्वारा मध्य देखि होई थाए ओके. Then come to the structure and chemical nature. Already I have said that virus has the nucleic acid in the center that is known as core or a genome and that has the protein sheath that is surrounded the nucleic acid that is known as the capsid okay. Then come to the nucleic acids. Already I have said that nucleic acid the center of the it remains center of the viruses at the center of the cell of the viruses. That is known as the genome that contains the either RNA ribonucleic acid or DNA deoxyribonucleic acid that may be single stranded किंबा double stranded होइक रही थांती एवं एही न्यूक्लिक एसिड मध्य जेनेटिक इनफॉरमेशन भाइरस जेनेटिक इनफॉरमेशन गुड़ाक रही थाए
साधारणतः न्यूक्लियस जमी जेनेटिक इनफर्मेशन गुड़ा रही था जेनेटिक इनफर्मेशन रही है और यह पैरेंट डॉक्टर सेल को ट्रांसफर होता है इनफर्मेशन जेनेटिक इनफर्मेशन गुड़ाक तेणु बहुत गुड़े क्यारेक्टर डॉक्टर सेल पैरेंट सेल भली काम पैरेंट भली देखा था शो कर ओके then come to the capsid already said that capsid is surrounded to the nucleic acid or a genome and capsid is a protein cell or protein sheath and it will have the functions that will be protect to the nucleic acid and will be helpful for the attached to the susceptible host cell एवं host cell को host cell भितर attachment करिया पई मध्य ए capsid सहायक होता है then come to the envelope already is that envelope surround to the capsid and envelope contain the both protein and lipid okay এই envelope किछि क्राइटेरिया थाए एवं यार थिकनेस है 10 to 15 नानोमीटर एवं एथरे कार्बोहाइड्रेट बा ग्लाइको प्रोटीन मध्य थाए यार फंक्शन है कौन ना एथरे एंटीजेनिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी थाए एंटीजेनिक प्रॉपर्टी व्हाट इज द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ द viruses that has a capable of binding to an antibody or antigenic receptor especially one that induces an immune response तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी आम जानिचे जे एंटीजेन कौन करे ना एंटीबॉडी को बाइंड करिबारे सहायक होता है ओके एवं एंटीजेनिक रिसेप्टर जो एंटी भाइरस जो एंटीजेनिक रिसेप्टर अच्छी ताहा कौन करे ना इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़े इम्यून रेस्पॉन्स जति अछि ताको माने दबाइबारे सहायक हुए इम्यून रेस्पॉन्सटा को जी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स अच्छी ताको से इम्यूनिटी पावरटा को टोटाल कैप्चर करिया ट्राई करी थाए ओके तेणु कौन है ना एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो अच्छी बैक्टेरिया जो सॉरी भाइरस से कौन करे ना एंटीबॉडी को बाइंड करबारे हेल्प करी थाए एवं एंटीजेन निहत गोटे एंटीजेनिक रिसेप्टर थाए जहाँकि से कौन करे ना बॉडीर इम्यून रेस्पॉन्सटा को दैट इज इंड्यूस कर सहायक होता है ओके इम्यून रेस्पॉन्स जी रही ये कौन करे ना इम्यून रेस्पॉन्स को बाइंड कैप्चर करके बॉडी में डिजीज क्रिएट करि थाए ओके एवं भाइरस एवं एनवलपर मध्य बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मध्य रही इनडायरेक्टली कह गला जे भाइरसर कैरेक्टरिस्टिक्स ओके जहाँ एंटीजेनिक बायोलॉजी प्रॉपर्टी जहाँ एनवलप रही कह गला जे सेटा होची भाइरसर होची क्राइटेरिया ओके सो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रही जहाँ कि से एंटीबॉडी को बाइंड करे सहायक होता है एवं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी माध्यम से कौन करे ना होस्ट सेल मध्य कौन करे ना दे जेनेटिक मटेरियल गुड़ा क्यारी करि थाए एवं से रिप्रोडक्शन करि थाए होस्ट सेल भितर रिप्रोडक्शन करि थाए एवं जेनेटिक मटेरियल इनफॉर्मेशन गुड़ा क्यारी करि थाए पैरेंट डॉक्टर सेल को मध्य क्यारी करि थाए ओके देन कम टू द रेप्लिकेशन ऑफ भाइरसेस सो भाइरल रेप्लिकेशन बा भाइरल मल्टीप्लिकेशन पई कौन करता है ना भाइरल न्यूक्लिक एसिड सहायक होता है ओके एंड दैट न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द कैरीज द जेनेटिक मटेरियल इनफॉर्मेशंस सो इन द रेप्लिकेशन वायरस कौन हुए ना जो हम वायरस दैट वायरस कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड दैट न्यूक्लिक एसिड कैरीज द जेनेटिक मटेरियल इनफॉर्मेशंस फॉर द वायरल रेप्लिकेशंस ओके व्हेन virus enters the host cell that will create a new viral particle and then replication occurs. सो केमी रेप्लिकेशन भाइरस होता है होस्ट सेल भितर ना आम जान जे भाइरस भितर भाइरस दैट कंटेन्स द न्यूक्लिक एसिड्स दैट विल बी कंटेन्स द जेनेटिक मैटर इनफॉर्मेशन दैट कैरी फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन ओके देन व्हेन भाइरस एंटर्स टू द होस्ट सेल दैट क्रिएट ए न्यू वायरल पार्टिकल्स then replication occurs. So it the replication of virus occurs in the following phase. जो replication virus केमित होए जेतले होस्ट सेल भीतर एंट्री करे सेतले गोटे न्यू वायरल पार्टिकल तैयारी करे एवं सेथरे कोन होए ना जेनेटिक मटेरियल इनफॉरमेशन को ट्रांसफर होई थाए ओके पेरेंट सेल डॉक्टर सेल हुए पुणी सेट मध्य से पेरेंट पुणी डॉक्टर सेल को मध्य ट्रांसफर होई थाए तापर एही भाबरे कोन हो रेप्लिकेशन बा वंश विस्तार भाइरस होई थाए ओके तो भाइरस रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन केमित हुए फास्ट केतोटे स्टेप दे के से होता है तो फास्ट स्टेप है एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट
द स्पेसिफिक एंटीजेनिक रिसेप्टर सेल मध्य स्पेसिफिक एंटीजेनिक रिसेप्टर माध्यम भाइरस जो स्पेसिफिक एंटीजेनिक रिसेप्टर अच्छी ता माध्यम से कौन करे ना होस्ट सेल सरफेस भितर को एंट्री करि थाए ओके होस्ट सेल भितर से अटैचमेंट होता है देन पेनिट्रेशन द नेक्स्ट स्टेप इज द पेनिट्रेशन इन द पेनिट्रेशन स्टेज व्हाट हैपन the virus particles enter to the inside the host cells okay and that occurs the penetration stage occurs by the following phases okay first is the phases is the viropexis or known as endocytosis ये viropexis और endocytosis प्रोसेस रे कौन हुए ना भाइरस पार्टिकल चारिपटे होस्ट सेल मेम्ब्रेन गोटे भेसिकल तैयारी करिथाए ओके एवं ताहा मध्य साइटोप्लाज्म पर्यंत मध्य से भेसिकल तैयारी करिथाए ओके केतक भाइरस अच्छा से मैंने कौन करती ना डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा एडमिटेड हो था यथा एग्जांपल होची एडिनो भाइरसेस ओके तो आम फास्ट है केमी भाइरसटा रेप्लिकेशन होची तो किसी स्टेप अच्छी फास्ट है भाइरस कौन करे ना होस्ट सेल तार स्पेसिफिक एंटीजेनिक रिसेप्टर सेल मध्य होस्ट सेल सरफेस अटैच होकर रही है सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेशन इन पेनिट्रेशन स्टेज रे कौन होता भाइरस डायरेक्ट होस्ट सेल भितर एंट्री करि थाए ये जो भाइरस होस्ट सेल एंट्री करने ये प्रोसेस चली थाए ताको आम भाइरोपेक्सिस प्रोसेस करता ये भाइरोपेक्सिस बा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा कौन हुए ना भाइरस पार्टिकल चारिपटे होस्ट सेल मेम्ब्रेन कौन करें कभर करके रखि थाए बा भाइरस पार्टिकल चारिपटे होस्ट सेल मेम्ब्रेन कौन करें गोटे भेसिकल तैयारी करि थाए ओके भाइरस पार्टिकल चारिपटे गोटे भेसिकल कभर होगी थाए से भेसिकल किए तैयारी करते हैं ना होस्ट सेल मेम्ब्रेन तैयारी करि थाए तो भाइरस पार्टिकल चारिपटे भेसिकल होस्ट सेल मेम्ब्रेन तैयारी करि थाए एवं यह साइटोप्लाज्म पर्यंत मध्य ये भेसिकल भाइरस चारिपटे होइकी रही थाए ओके आउ थे कहला जे भाइरस मध्य कौन करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन माध्यम डायरेक्टली कौन करे होस्ट सेल भीतर को एंट्री कर जाए एग्जांपल है एडिनो भाइरस ओके देन कम टू द अनकोटिंग स्टेज इन द अनकोटिंग स्टेज व्हाट हैपन the capsid of the viruses that will be removed that capsid will be surrounded to the nucleic acid जो capsid थाए सेटा कौन हो जाए रिमूव हो जाए ओके ओके देन द न्यूक्लिक एसिड आल्सो रिलीज इनटू द होस्ट सेल जो सेल भीतर को कौन हुए ना न्यूक्लिक एसिड गुड़ा रिलीज होता है और कैप्सिडा कौन होता है रिमूव हो जाए कैप्सिडा रिमूव होला कौन है ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिडटा कौन करता है ना बाहरी जाती होस्ट सेल भीतर को ताले कौन है ना नेक्स्ट स्टेप डिजीज क्रिएट होता है नेक्स्ट इज द बायोसिंथेसिस प्रोसेस ये बायोसिंथेसिस प्रोसेस कौन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोसिंथेसिस ना बायोसिंथेसिस इन दिस फेज इट इन दिस फेज वायरल न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड एंजाइम ऑल आर क्रिएटेड ओके तो यहाँ हूँ गोटे भाइरल रेप्लिकेशन स्टेज जो स्टेज रे कौन हुए ना भाइरल न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड एंजाइम इत्यादि तैयारी होता है ओके देन कम टू द मैच्यूरेशन स्टेज कंटेन्स टू प्रोसेस फर्स्ट इज द असेंबली सेकेंड इज द एसोसिएशन विथ द न्यूक्लिक एसिड सो इट फर्स्ट इज द असेंबली ओके so in the assembly stage what happen that is the lead protein already know that protein will be composed the virus contains protein okay so it is a polypeptide chain that will be assembled with the capsomers okay that is the capsomer means that is the subunit of a capsid okay that is the cell assembled like the capsid okay तो ये जो असेंबली स्टेज रे कौन हुए जो प्रोटीन अच्छी जो प्रोटीन जो अच्छी पॉलीपेप्टाइड चेन कहती पॉलीपेप्टाइड चेन रही जो भाइरस भितर से पॉलीपेप्टाइड चेन कौन करे ना कैप्सोमर को दैट आर रैपिडली असेंबल्स टू इनटू द कैप्सोमर से माने कैप्सोमर सहित असेंबल हो रुहति तो कैप्सोमर गोटे हूँ ना कैप्सिड सब यूनिट अटे और एगुड़ाक सेल्फ असेंबल लाइक द कैप्सिड भाया से सेल्फ असेंबल अटंती एवं एमाने देखा से कैप्सिड भाया अटंती कैप्सोमर ये कैप्सिड सब यूनिट अटे सो फास्ट असेंबली स्टेज रे कौन हुए ना से माने कैप्सोमर को गति करती पॉलीपेप्टाइड चेन बा जो प्रोटीन रही कैप्सोमर
हो जाती कैप्सन जोटा कि आमर कैप्सिड सब यूनिट अटे से कैप्समर पुणी कौन तैयार करना प्रो कैप्सिड तैयार करती से प्रो कैप्सिड कौन ना इट इज एन इमेच्योर भाइराल कैप्सिड स्ट्रक्चर जोटा कि भाइराल जो कैप्सिड स्ट्रक्चर है सेटा इमेच्योर स्टेज को कहती प्रो कैप्सिड ताले एथरे असेंबली स्टेज रे कौन है ना जो प्रोटीन बा पॉलीपेप्टाइड चेन रही से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स विल बी असेंबल्ड इनटू द कैप्समर दैट देन इट विल बी फ्रॉम द प्रो कैप्सिड ताले पॉलीपेप्टाइड चेन बा जो प्रोटीन अच्छी ताहा कैप्समर को परिणत होती कैप्समर गुड़ाक होती कैप्सिड सब यूनिट अटे एवं ये कैप्समर परवर्ती स्टेज रे कौन हुए ना प्रो कैप्सिड को कन्वर्ट हो जाती प्रो कैप्सिड हूँ जोटा कि आमर इमेच्योर भाइराल कैप्सिड स्ट्रक्चर ओके भाइराल कैप्सिड स्ट्रक्चर इमेच्योर स्टेज कहती प्रो कैप्सिड देन कम टू द एसोसिएशन विथ न्यूक्लिक एसिड देन से प्रो कैप्सिड जो रही दैट प्रो कैप्सिड विल बी अटैच और इनकॉर्पोरेट विथ द न्यूक्लिक एसिड देन विल बी फॉर्म द कंप्लीट वायरियन और डॉक्टर वायरसेस ताले मैचुरेशन स्टेज दुईटा प्रोसेस रहा गोटे आसेम्बल आसन विथ न्यूक्लिक एसिड आसेम्बली स्टेज रे आमर जो प्रोटीन रही भाइरस भीतर जो प्रोटीन रही से प्रोटीनटा कौन हुए ना कैप्समर को कन्वर्ट होती कैप्समरटा हूँ गोटे कैप्सिड सब यूनिट या कैप्सिड भाई देखा से कैप्समर पुणी कन्वर्ट होती ना प्रो कैप्सिड कन्वर्ट होती प्रो कैप्सिड हूँ गोटे इमेच्योरल भाइरस स्ट्रक्चर जो भाइरस स्ट्रक्चर गोटे इमेच्योर स्टेज अटंती देन नेक्स्ट स्टेप जो एसोसिएशन विथ न्यूक्लिक एसिड रही से स्टेज रे कौन हुए ये प्रो कैप्सिड गुड़ाक कौन करती ना न्यूक्लिक एसिड सहित कंबाइन करती ओके तापर गोटे कंप्लीट भाइरन क्रिएट हुए जोटा कि भिरियन मुझे कही कंप्लीट इनफेक्टियस यूनिट ऑफ भाइरस नोन एज भिरियन से भिरियन स्ट्रक्चर तैयारी होता है ओके बा डॉक्टर भाइरस तैयारी हुए जिते गोटे भाइरस तार मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करके गोटे डॉक्टर भाइरस तैयारी करें से कौन हुए ना जो प्रोटीनटा भाइरस रही सी गोटे फास्ट स्टेज फास्ट कैप्समर होता है तापर कैप्समरटा पुणी हो जाए कौन ना प्रो कैप्सिड देन प्रो कैप्सिड अटैच होता है न्यूक्लिक एसिड को अटैच करे तापर कंप्लीट भाइरल स्ट्रक्चर तैयारी करा डॉक्टर भाइरस तैयारी होता है किसी इनवल्वड भाइरस रही था एग्जाम्पल जो गोटे हर्पस भाइरस रही से इनवल्व भाइरस कौन करती ना बॉर्डिंग प्रोसेस रे से माने कौन करती ना रेप्लिकेशन करी थांती बॉर्डिंग प्रोसेस होची लाइक द ईस्ट सेल इन ए साइड दे विल बी मल्टीप्लाई गोटे ऑर्गेनिज्म भितर से माने कौन करती ना सेल रो गोटे साइड रे से माने कौन करती ना रेप्लिकेट बा मल्टीप्लाई करी थांती ताको हमें बॉर्डिंग कहि थाउ ओके ईस्ट सेल मध्य देखा जाय थाय बॉर्डिंग प्रोसेस हर्पस एग्जाम्पल हर्पस भाइरस भितर कौन हुए मैचुरेशन अकर्स न्यूक्लियस मैचुरेशन होता है एवं एथे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयारी हुए एग्जाम्पल है अर्थमेक्सो भाइरस पारामेक्सो भाइरस हर्पस भाइरस ग्रुप भितर जाऊँगी तो एगुड़ा कौन करे न्यूक्लियस भितर मैचुरेशन स्टेज चली थाए ओके देन क्लासिफिकेशन भाइरस क्लासिफिकेशन देखा दुईटा क्लास विभक्त कराई डिपेंड टू मेन क्लासेस फर्स्ट राइबो भाइरस डीएक्स राइबो भाइरसेस द राइबो भाइरस दैट कंटेन आइदर दैट कंटेन आरएनए भाइरस द डीएक्स राइबो भाइरस दैट कंटेन द डीएनए भाइरस ओके then come to the RNA viruses classifications. RNA virus it will include picorona viride family, that in the picorona viride family that contains the enteroviruses, rhinoviruses, hepatoviruses. In the enteroviruses, that is example of the polioviruses. And the rhinovirus family that will include the rhinoviruses. In the hepatoviruses family that contains the hepatitis A viruses. Then come to the orthomyxoviride family that contains the influenza viruses. In the paramyxoviride family that contains the mumps virus, parainfluenza virus, etc. In the rhabdoviride family that contains the rabies viruses. In coronaviride family that contains the coronaviruses. Okay. Retroviride family that contains the HIV or human immunodeficiency viruses. Reviride family that contains the rotaviruses. Other family which include viruses such as arboviruses and antiviruses. In the DNA viruses include the poxviride family that contains the pox viruses, herpesviride family that contains the herpes viruses, adenoviride family that contains the adenoviruses, hepatinoviride family that contains the hepatitis B viruses, and repoviride family that contains the papilloma virus or polio virus, and paraviride family that contains the parvoviruses. Okay, so the viruses morphology, structure, size, etc. will be completed.